السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ اما بعد، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ہم سب کو مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ انعام شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ صحیح طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں اور اس کی صحیح معنی میں بیان کروں، اور پھر ہم سب کو جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھو، سورہ انعام 7ویں پارے کا 7واں رکوع، 7ویں پارے میں کا 7واں رکوع، سورہ انعام شروع ہونے کا۔ اب سورہ انعام مکی سورت ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، مدینہ سورتوں میں زیادہ سے زیادہ احکامات آتے، یہ کرنا گناہ، یہ مت کرو، تم یتیموں کی مال مت کھاؤ، بلکہ زیادہ اللہ کے احکام آتے اس میں، مدینہ صورت میں۔ لیکن مکی صورتوں میں کیا آتے کہ تو زیادہ سے زیادہ زور اللہ کا قدرت کی نشانیاں بتا کو اللہ ایک اکیلا کے اوپر ایمان لانا، شرک کی نفی کرنا، توحید پہ لے کے آنا لوگوں کو۔ زیادہ سے زیادہ پوری قرآن دیکھ لو، پوری قرآن میں مکی صورتوں میں زیادہ توحید کا ہی بیان رہتا۔ کئی کو کہتا مکے والے مانتے سو نہیں نا، اس وجہ سے زیادہ اللہ مکی صورتوں میں توحید لے کے آتا۔ وہ مدینہ صورتوں میں دیکھ لے تو احکامات ہے، اس کے حکمات بولتا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرے تو ایسا ہوتا، یہ کرے تو ایسا ہوتا ہو۔ کئی کہ تو مدینہ والے جلدی ایمان لائے مکہ والے سے بھی، اس وجہ سے مدینہ کے صورتوں میں اللہ اس کے احکامات بولتا، بیان کر ڈالتا۔ لیکن جب مکی آیت آتے ہیں تو اللہ توحید پر لے کے آنا چاہتا، توحید کے بارے میں چھے پورا سورتوں بھی کدھر پھرو تو بھی اس کا اصل موضوع توحید ہی رہتا، شرک کی نفی رہتی، کیونکہ مکے میں اس دور میں بہت شرک تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تھی، بہت شرک تھا۔ اس شرک کی نفی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں بولتا، سورۃ الانعام میں ہی نہیں مکی آیتوں میں زیادہ توحید کے بارے میں بولتا، اللہ شرک کی نفی کرتا۔ اب یہ سورۃ الانعام شروع کریں گے۔ انعام کسے کہتے ہیں؟ انعام اسے کہتے ہیں کہ 4 پاؤں والے جانوروں کو کہتے۔ سورۃ الانعام میں اب 4 پاؤں والے جانور کا کئی آیا کہ تو تذکرہ، سورۃ الانعام میں بھینس، گائے، یہ 4 پاؤں والے جانوروں کے بارے میں اللہ مثالیں دیتا۔ یہ سورۃ الانعام میں ہم آگے چلیں گے تو ہم کو اس صورت میں یہ معلوم ہوگا، اللہ بیان کرتا، دیکھو 4 پاؤں والے جانوروں کو میں کیسا پیدا کروں گی، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کرتا۔ اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے سورۃ الانعام۔ انعام کا مطلب یہ ہے کہ 4 پاؤں والے جانور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم شروع کریں گے سورۃ الانعام
پہلے رکوع 7ویں پارے کا 7واں رکوع. تحقیق تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، روشنی اور اندھیروں کو بنایا. ثم پھر کافر لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں. یہ سورۃ الانعام کی پہلی آیت. پہلی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے. اب دیکھو آسمان کو کیسا بنایا اللہ تعالیٰ، بغیر پلروں کے بنایا اللہ تعالیٰ. ہم گھر بغیر پلروں سے گھر نہیں بنا سکتے. ہمیں آسمان کی طرف سے کتنے فوٹ ہے تو بھی ہمارے آنکھ اٹھا ہوا دکھے تو بھی اس میں کوئی سا کمی بھی نہیں آتا. دیکھ 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 کو ہمیں بے ہوش ہو جاتا، ہمارے آنکھ نیچے گر جاتے، ہمارے ہنکے نیچے آ جاتے، تھک جاتے. ہمیں اس میں کیا بھی کمی نہیں رہتی. ہم نہ یہ دکھتا ہے تو یہ بادل ہے، یہ آسمان نہیں. آسمان تک کوئی راکٹ نہیں جا سکا، کون سا ایروپلین ہوائی جہاز کچھ بھی نہیں جا سکتا. یہ تو آسمان نہیں. ہم نے دکھتا ہے تو اوپر دکھتا ہے تو یہ آسمان سمجھتے ہیں کیا کہ ہمیں یہ بادل، یہ آسمان نہیں، اصل آسمان نہیں ہے. آسمان ابھی بہت اوپر ہے، ہمیں جا نہیں سکتے وہاں تک کے، ہم پہنچ نہیں سکتے. اب اللہ اس میں نشانیاں بتا رہا ہے، اپنی نشانیاں. دیکھو کتنا بڑا آسمان بنایا میں، تمہیں دکھتا نہیں تم نا، انکیا نہیں ہے تم نا. پھر اتنے بنائے اس کے، پھر اس کی ہی تعریف کرنا نا تمہیں، اس کی عبادت کرنا نا تمہیں. آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اور پھر وہ کیا کرا؟ اندھیرا اور روشنی کو بنایا. اب دیکھ لو مثال کے طور پر روشنی کو لے لو بھائی. اب سورج کتنی روشنی دیتی، دیکھو کتنا زیادہ روشنی. اس کا ایک مثال میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. اگر میں گھر میں ایک لائٹ رکھا تو وہ لائٹ ایک روم کے اندر ہی دے سکتا نا، وہ لائٹ روشنی. زیادہ سے زیادہ بڑا لائٹ ہے تو بہت خرید والا لائٹ ہے تو زیادہ سے زیادہ 2 روم تک دے سکتا ہے. اکیلے کی گھر پورا لائٹنگ دے سکتا، وہ لائٹ دے سکتا نہیں نا، گھر پورا لائٹنگ ہے. اب باہر محلے کے لائٹ ہے، اسٹریٹ لائٹ، یہ ایک لائٹ ہے پوری گاؤں کو دے دیجیے روشنی. یہ ایک لائٹ ہے، دے نہیں سکتی نا. یہ ایک لائٹ ہے، ایک لائٹ ہی چاہے وہ محلہ پورا لائٹ دے سکتا نہیں، دے سکتا نا. ارے گلی کو بھی کتنے لائٹ لگانا پڑتا ہے، اور نہیں وہ روشنی پڑ جاتی نہیں. لیکن اللہ کا قدرت دیکھو، ایک ہی سورج ہے، کتنا بڑا روشنی ہے. وہ ایک گاؤں کو نہیں، ایک گھر کو نہیں، ایک محلے کو نہیں، ایک اسٹیٹ کو نہیں، ایک دیش کو نہیں، پوری دنیا کو روشن دیتا ہے. انہیں سورج روشنی دیتی ہے جی. ایک سورج ہے. ہمیں وہ لائٹ کتنے بڑے لائٹا رکھے تو بھی ہم نے اتنا روشنی نہیں آتا، کتنے بڑے بڑے لائٹا رکھے تو بھی ہمیں ویسا کا ایک سورج ہے. اللہ یہ نشانیاں بیان کرتا ہے. ہم نہ سوچو، تمہیں تمہارے دماغ سے سوچو، تمہیں دیکھو میں کیسا بنایا کہ ایک سورج سے پوری دنیا میں روشن کر رہا ہے، میں روشنی دیتا ہوں. پھر کیا کرا؟ اور اندھیرے کو بنایا. اب دیکھو اندھیرا پڑ گیا تو کیسا رہتا؟ روشنی نہیں تو اصل روشنی نہیں تو پورا اندھیرا ہے تو کیسا رہتا؟ گھپ اندھیرا ہو جاتا. روشنی نہیں تو گھپ اندھیرا ہو جاتا. بہت سارے کام ہمارے ہوتے نہیں راتوں میں. رات تو سونے کے واسطے، آرام کرنے کے واسطے، دن میں ہمیں کام کرنا. ہم نہ روشنی نہیں تو کیسا بھائی؟ گلے اٹھتے نہیں، پودا اوپر اٹھتے نہیں، کیا بھی رہتا نہیں ہمارے کام. روشنی نہیں تو ویسا کا اللہ روشنی کو بیان ہے. دیکھو ہمارے واسطے اندھیرا کو بھی بنایا. خالی روشنی کر لو، ہمیں کمانا 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 وہ اس میں مر جاتے. ہمیں اصل ریسٹ لیتے نہیں. ہرس زیادہ نا آدمی کو، اتیاسا زیادہ نا آدمی کو، وہ اتیاسا کے واسطے ڈھونڈتے رہتا. ابھی روشنی ہے نا، ہمیں کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے. اس کا سے اللہ نے نظام بنا ڈالا. دن میں تمہیں کام کرو، رات میں آرام کروا لو. تمہیں وہ ایک روشنی دینا ہے تو پورا دن ہمیں کام میں چل جاتے. ابھی ہمارا باڈی کے بارے میں خیال کرتے نہیں، ہماری صحت کے بارے میں ہم خیال کرتے نہیں. دن ساری کاما 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 میں چلتے. اب یہ بولتا ہے پھر یا سما کیا، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اندھیرا اور روشنی کو بنایا.
सुम्मा या अरबी में सुम्मा का लफ्ज का मानी यह है कि मिसाल से मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास अरशद आए, सुम्मा फहीम, अरशद आने की थोड़ी देर के बाद फहीम मेरे पास आया। अब यह मिसाल समझ में आ गई ना? पहले कौन आए मेरे पास? अरशद आए, फिर सुम्मा फहीम, फिर थोड़ी देर के बाद, कब थोड़ी देर के बाद है? अरशद आए तो थोड़ी देर के बाद है मेरे पास फहीम आ गए। अब यह मिसाल समझ में आ गई ना? अब देखो, अब यह सुम्मा का लफ्ज कहीं को दिया गया तो अल्लाह हमना जरा टाइम देता है हमना सोचने। अब हमें दूसरे की तो बात करते हैं कर लो, प्रूफ के साथ हमें बात करते हैं कर लो, सब भी प्रूफ है कितने बोलाते क्या उसे? नहीं बोलते ना। पहले एक बात करते हैं, प्रूफ बोलते उसे, वो प्रूफ बोलने के बाद संगत से हमें उसे बोलते नहीं, दूसरा दलील देते नहीं उसे, जरा उसे सोचने का टाइम देते, जरा खुद टिक्को हमें बाद में बिल्कुल नहीं माना तो जब हमें दूसरा दलाइल देते, दूसरा प्रूफ देते, ये भी है रे को बोलो दूसरा दलील, कहीं को टाइम देते, सोचने का टाइम देते उसे। वो संगत से दलीला दिए नहीं सका, प्रूफा दिए नहीं सका, पहले प्रूफ दे डालना, पहले उसे सोच ले ले, सोचने के बाद भी वो प्रूफ को नहीं कह लिया तो जब हमें दूसरा प्रूफ बोलेंगे वो समझते हैं। वैसा चे अल्लाह भी सुम्मा या हमना भी एक 2 मिनट का टाइम देता है, 1 मिनट का टाइम देता है, सोचो तुम्हें लगा को बोलो हमना टाइम देता है। कई को अल्लाह का कहे तो हमारे दिमाग में सुनने के बाद तमाम तारीफें उस अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमानों को और जमीन को बनाया, अंधेरा और रोशनी को बनाया। तो क्वेश्चन को हमारे दिमाग में भी कितना योग होता, हमारे दिमाग में भी कितना योग हो जाता वो, अरे भाई बहुत बड़ी जात है जी, वो आसमानों को बनाया, जमीन को बनाया, अंधेरा को भी बनाया, रोशनी को भी बनाया, वो नीचे को बोल हमारे दिल में भी आता ना, वो मामूल जात नहीं, वो बहुत बड़ी जात है, ये बनाया सुने को बोल हमारे दिमाग में आता ना ख्याल है। जब हम क्या कर लेते हैं, वामो इतने ऐसी बनाया करके तो मखलूक इंसान उसके साथ हो सकता नहीं ना, कोई मखलूक उसके बराबर हो सकते नहीं, अल्लाह के बराबर कौन भी नहीं हो सकते। वो इस लायक है कि हम सब उसकी ही हमको सना बयान करें, हम उसकी ही उस अकेला अल्लाह पर ईमान लाके, उस अकेला अल्लाह पर ईमान लाके उस अकेला अल्लाह को इबादत करे, उसकी ही इबादत करे। तो बोलता हमारे भेजे में फिरता ना, इतने निशानियां बोलने के बाद अब यह बोलता है रुक जाओ सुम्मा सुम्मा, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। असल में होना तो ये छोड़ा था, लेकिन ये हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। असल क्या हुआ अल्लाह करते तो वही बोलते हैं, सुनो असल में क्या हुआ कि वही बोलता हूं, सुनो। सुम्मा का लफ्ज ये बताने के लिए आया, इत्तमानी है, ये सुम्मा के नीचे इत्तमानी है कुरान में। अब इस आयत में सुम्मा का लफ्ज में इत्तमानी है। अब इतना सोचने के बाद अल्लाह बताता है क्या हुआ अल्लाह फिर करते तो इसका उल्टा हुआ पूरा। लोग असले उस एक अकेला अल्लाह पर ईमान लाते, उस एक अकेला की इबादत करना था, लेकिन अल्लाह करे नहीं। फिर ये काफिर लोग अपने परवरदिगार के साथ दूसरों को शरीक करते हैं। अरे तो क्या इतने देखने के बाद भी ये काफिर लोग ये अल्लाह पे ईमान लाना नहीं, अल्लाह की इबादत करना नहीं, वो लगा दूसरा को ले रखा को अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं जी, शरीक करते हैं। फिर भी अल्लाह के बराबर को बोलकर अल्लाह का बराबर करवा दी काफिर लोग, तो बोलकर अल्लाह शिकायत करता है। अब नेक्स्ट दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, सुम्मा, या भी फिर सुम्मा आया, हमने अल्लाह मिट्टी से बनाया। बाहर स्कूल में कॉलेज में क्या सिखाते हैं मालूम, डार्विन थ्योरी को एक साइंटिस्ट रहा, वो साइंटिस्ट वो बदबख्त वो बेवकूफ ये थ्योरी कराया, डार्विन थ्योरी बोल के एक तहकीक में लेकर आया। वो क्या हुआ करते तो हमें बंदर से इंसान बनेगा थे, वो बेवकूफ बोलता है डार्विन, वो डार्विन थ्योरी उन्हें स्कूल में बच्चा को, हमारे बच्चा को हम ना कॉलेज में यह सिखाते हैं सब भी। डार्विन थ्योरी के मुताबिक है बंदर सी हमें, कोटी सी हमें इंसान बन गए करते कितने करोड़ों साल के बाद। क्या भाई है, क्या बेवकूफियत है ये। लेकिन वो जब कितने बड़े बड़े पोस्टा में है, सुनो भी पढ़े लिखे सुनो भी ऐसे मानते हैं हो डार्विन की थ्योरी सही, हमें बंदर से बने को बोल मानते हैं। लेकिन बंदर से हमें बने नहीं भाई, हमना अल्लाह मिट्टी से इंसान ही बनाया, बंदर बना तो हमने इंसान बनाया नहीं। अल्लाह हमने इंसान बनाना समझा, इंसान ही बनाया हमना, बंदर से हमने इंसान बनाया नहीं। अल्लाह
मिट्टी सी बना को एक पुतला बना को उसमें रूह डाला को इंसान बना डाले हमना वत्ताच नहीं कि बंदर से हमें इंसान बने नहीं। ये स्कूलों में कॉलेज हमें गलती सिखाते हैं भाई, हमारे बच्चों को खराब करते हैं। वो बच्चा भी मालूम नहीं, वो बच्चा करे दीन नहीं है, हमारे अंदर दीन नहीं है, हमें बोलते नहीं है वो बच्चा को अरे अल्लाह रे हमने मिट्टी से बनाया को बोल, जब क्या कहते हो लगा स्कूल में हमारा सारा बोलते हुए सोच करेक्ट है, वो डार्विन थ्योरी करेक्ट है वो बोल को समझते बच्चे भी बिगड़ जाते, बच्चे भी ऐसा समझते हाँ डार्विन सही बोला, हमें बंदर से इंसान बने, करोड़ों साल इवॉल्व होते इंसान बन गया, तो बोल बच्चे भी वो समझते। इल्म की कमी है। अभी अल्लाह वो बोलता है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया सुम्मा फिर उसने ये वक्त मुकर्रर कर दिया, मुकर्रर कहे तो ये वक्त फिक्स कर दिया। वो वक्त क्या अल्लाह का कहे तो मौत का वक्त, हमें का भागे तो भी मौत से हमें भाग नहीं सकते, किधर भागे तो भी हमें घर में छपड़ने को रहे तो भी बाहर खुल्ला फिरे तो भी हमें मौत से छूट नहीं सकते, मौत से बच नहीं सकता। अब वो बोलता है एक वक्त में फिक्स कर वाला हूं, वो वक्त क्या होगा तो मौत का वक्त है। हर एक इंसान इस दुनिया से चले जाना चाहिए, एक जना पहले जाता और एक जना उसके पीछे चले, हमें सब उसके पीछे चले जाते, हमें भी जाना चाहिए, हमें क्या या परमानेंट नहीं क्या होगा तो एक जना सामने जाता और एक जना पीछे जाता। वो बोलता है फिर या फिर को सुम्मा फिर को हमें सोचने का टाइम देता है, ये तो निशानियां देखने के बाद फिर तुम्हें सोचो, तुम्हारे अकल है ना दिमाग है ना तुम्हें सोचो फिर उसके पास और एक वक्त महफूज है उसके पास, और एक वक्त भी उसके पास है फिक्स कर को है महफूज है उसके पास है। वो वक्त क्या हुआ अल्लाह कहे तो कुल कायनात की मौत, सूरह रहमान में कुल्लु मन अलैहा फान, हर एक चीज फना होने वाली है सिवाय अल्लाह की। अब या वो छे एक वक्त का और एक वक्त क्या हुआ अल्लाह का कहे तो पूरी दुनिया को मैं खत्म कर रहा हूं, तोड़ मोड़ को खत्म कर रहा हूं, इंसान को जिन्नाता को फरिश्ते को सबको मैं खत्म कर रहा हूं, वो भी मेरे करे छे वो टाइम है किसे भी मालूम नहीं, अल्लाह महफूज रख डाला, कब करेगा बोला नहीं अल्लाह, वो अल्लाह कुछ मालूम है किसे भी मालूम नहीं, फिर भी तुम शक कर रहे हो। फिर को क्या बोलता है अल्लाह, इतने निशानियां देखने के बाद भी तुम्हें शक करते हैं, गुमान करते हैं, पता नहीं हमें दोबारा उठते कि नहीं कि मरने के बाद है, पता नहीं हमें जिंदा होते कि नहीं कि दोबारा को बोलो, तुम्हें गुमान में मरते हैं को बोलो, बोलता है अल्लाह। ये दूसरी आयत। अब आगे तीसरी आयत है, तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है वही अल्लाह है आसमान में और जमीन में, तो क्या आसमानों का अलग अल्लाह नहीं, जमीन का अलग अल्लाह नहीं, पूरा एक ही चल रहा, पूरे आसमानों में जमीन में सिर्फ और सिर्फ उस अल्लाह की इबादत है, इबादत करना है, उसके सिवा दूसरे किसी को भी शरीक नहीं करना हमें। आसमानों में अलग अल्लाह, दुनिया में जमीन में अलग अल्लाह नहीं, पूरी कायनात में भी एक ही चल रहा। फिर को हमें आगे क्या बोलता है अल्लाह, और क्या अल्लाह उसका इल्म कैसा, उसका नॉलेज कैसा करते हैं, तो उसका इल्म यह है कि तुम्हारी छुपी हुई बातें खुली हुई बातें सब कुछ वो जानता है। उसका इल्म क्या होगा तो उसका नॉलेज क्या होगा तो तुम्हें अंदर क्या तो दिल में बोल देते हैं तो तुम्हारे बातों को भी उन जानता, तुम्हें ऊपर खाली बाहर को बोल डाले तो बातों को भी उन जानता, हर एक को तो उन जानता है वो बोल बोला उसका इल्म। बिल्कुल हदी क्या अल्लाह ये क्या अल्लाह कहते हो, और जो तुम कमाते हो वो सब कुछ वो जानता है। कमाना कहते या माल कमाना नहीं, या कमाने से मुराद इस 3 में आयत में सूरह अल-अनाम में तीसरी आयत में कमाने का मतलब यह है कि तुम्हें नेकी भी कमाते हैं बुराई भी कमाते हैं, नेकी कर को नेकी कमा लेते हैं, नेक काम कर को बुरी काम कर को बुराई भी कमाते हैं ना। अब वो तुम्हें नेकी कमाते हैं सो बुराई कमाते हैं सो वो भी मालूम अल्लाह को, तो वो तो तीसरी आयत में अल्लाह बोलता है। अब 4थी आयत, अब 4वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है नहीं आती इनके पास अपने रब की निशानियों में से कोई निशानी मगर ये लोग उन निशानियों से मुंह मोड़ लेते हैं। कहे तो क्या हो, ये लगा के पास है अल्लाह की निशानियां, लाखों करोड़ों निशानियां ये लगा के सामने आती ही चलती, लेकिन ये लगा का काम क्या होता है तो वो निशानियां का इनकार कर डालना, नहीं को बोलना, वो निशानियां को इनकार कर डाल को वो निशानियों से मुंह मोड़ लेना।
नहीं, ये नहीं। तो बोल अल्लाह के ऊपर एक अकेला अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाना, ये लगा का काम ये है। कितने निशानियां, कितने लाखा करोड़ा निशानियां बताए तो भी लगा वोट करते को बोल बोलता है अल्लाह। अब ये हमना भी, आज हमें भी देख लो कितने निशानियां देखते हैं दुनिया में, दे हमारे हंक्या के सामने रोज सुबह शाम कितने निशानियां अल्लाह के हैं, फिर भी हमें देख को भी अल्लाह की कुदरत की पहचान नहीं करते, हमें मानते नहीं। एक ही चले अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो बोल को मानते नहीं। वो एक ही चल रहा है, सब भी करे ऐसे वो बोल को मानते नहीं। ये सब भी देखने के बाद भी अब अगले आयत में अल्लाह डराता है, 5वें आयत में, सूरह अनाम में 5वें आयत में अल्लाह डराता है, तहकीक इन्होंने हक को इनकार कर दिया। इतनी निशानियां बताने के बाद भी, हक के इलाका के पास आने के बाद वो लगा इनकार कर डाले नहीं को बोल को। अब या हमारे नबी को तसल्ली देता है, इन्होंने इनकार कर दिया हक को जब इनके पास हक आया है। ये नबी आप तसल्ली से रहे, ये कहीं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? अल्लाह का कहे तो अनकरीब ये लोग जिस चीज का मजाक उड़ाते हैं ना, वो खबरें इनके आंखों के सामने आने वाली है। ये लगा मजाक उड़ाते सो हमारे नबी बोलते हैं तो अरे फलाना फलाना अजाब दे रहा था अल्लाह तुम्हें ऐसा करे, तो वो बोलते हैं तो मक्का वाले मुश्रिक लोग है अल्लाह का मजाक उड़ाते सो, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते सो, हमारे नबी घबरा जाते सो। क्या लगा इतने निशाने बोलने के बाद भी माने नहीं, इंसान का मजाक उड़ाते हैं, वो बोल डरते सो। उसका से अल्लाह ये आयत में नबी को तसल्ली देता है, तुम्हें तसल्ली से रहो, तुम्हें असल डरना नको, क्या अभी घबराना नको तुम्हें। ये लगा कहा तो भी भाग नहीं सकते, कहीं को भाग सकते नहीं करते, तो अनकरीब जल्द से जल्दी ये लगा कि कौन सा चीज का है तो मजाक उड़ाते हैं कि वो खबरें इनके आंखें के सामने आ जाती, इनके हंक्या के सामने आ जाती, तो बोलते अल्लाह बोल रहा है यार। अब सामने आयत नंबर 6 में, सूरह अनाम आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या ये लोग देखते नहीं है हमने इनसे पहले पिछले कौमों को कितने बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, कितने कौमों को हमने बर्बाद कर दिया। क्या ये लगा दिखते नहीं है क्या? अरब वाले अपने काफिलों को डालने को जाते हैं तो मिस्र के तौर पर, और मिस्र में कौन है? फिरौन का। फिरौन कितना ताकतवर वाला, लेकिन उसे क्या करे अल्लाह हलाक कर रहा है। क्या ये लगा दिखते नहीं है पीछे कितने कौमों को जी मैं हलाक कर रहा हूं, से बर्बाद कर रहा हूं, वो लगा मेरा नहीं माने को बोल को, तो वो अल्लाह बोलता है क्या ये लगा देखते नहीं है पिछले में कितने कौमों को हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, मैं उनको मजबूत ठिकाना दिया जमीन में, कहते बहुत ताकत दिया वो लगा को भाई जमीन में। कौम आज, कौम समूद, कौम फिरौन कितने ताकतवर वाले जी, वो लगा को उतने ताकतवर होने के बाद भी अल्लाह क्या कर रहा है? बर्बाद कर दिया। माना नहीं को बोल, अल्लाह की बात माने नहीं को बोल को, फिर वो तुमको नहीं दिया जो उनको दिया, कहते वो लगा तो दिया सब ताकत तुमने नहीं दी उनको, बोल बोलता है अल्लाह ताला मक्के वाले को तुमने दियो नहीं, वो लगा अभी तुम्हारे से ताकतवर वाले कुम्मुली तरीके से लोग बोलते ना, कुम्मुली तरीके से लोगों को वैसा वो लगा उतने ताकतवर वाले वैसा वाले को भी मैं हलाक कर रहा हूँ, लेकिन उतना ताकत भी तुमने जर्रा भी दिया नहीं मैं जमीन में ठिकाना। फिर तो वो लगा के वास्ते आसमानों से बारिशें बरसाए मैं, वो लगा के वास्ते फिर उनके नीचे नहरें बहा दी मैं। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? अल्लाह करते तो उनके गुनाहों के वजह से उनको हलाक कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया, और दूसरे लोगों को पैदा कर दिया, दूसरे कौम के लोगों को पैदा कर दिया। वो लगा इतने देने के बाद भी वो लगा मेरा माने नहीं माने को बोलो मैं क्या करूं, इतने देने के बाद भी मैं वो लगा तो खत्म कर रहा हूं, मैंने मार रहा हूं, तो वहां से दूसरे कौम वाले लोगों को पैदा कर रहा हूं मैं। या हमने डराता है अल्लाह, तुमने भी नहीं माने तो तुमने भी वैसा हलाक कर रहा तो मैं, मेरा जाने का क्या भी नहीं, तो बोलता अल्लाह बोलता है हमना अब इतने देखने के बाद भी हमें नहीं मानते हैं, तो अभी क्या हुई? कितनी बड़ी बेवकूफियत है वो। इतने निशानियां बोलता है अल्लाह ताला, इतने निशानियों के बाद भी हम उसकी पैरवी नहीं करते हैं, हम उसकी इबादत नहीं करते हैं। हमना भी कौम समूद, कौम आद, कौम फिरौन, ये सब भी बता तो अल्लाह हमने डराता है, तुम्हें कौन नहीं डरे कि तुमना भी ये अजाबत दे दो, क्या तुम्हें दिखे नहीं क्या वो बोल को हमना भी डराता है अल्लाह ताला भी। अब अगले आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, 7वें आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर हम आसमान से इनके सामने कोई लिखी हुई चीज नाजिल कर देते, उसको ये लोग
छू कर भी देख लेते, फिर भी ये लोग मानते नहीं। अपनी कुफर के वजह से इनकार करने वाले लोग यही कहेंगे कि ये तो खुला हुआ जादू है। वो लगा बोलते सो हमारे नबी के ऊपर डायरेक्ट कहीं को आते नहीं को बोल को बोलते सो, डायरेक्ट किताबा कहीं को उतरते नहीं को बोल को। वो बारे में अल्लाह बोलता है अगर हमें आसमान से क्या तो उतारना को बोल को उतारे कर लो, हमें आसमान से लिखो है जो किताबा क्या तो उतारे कर लो हमें। वो लगा उतारने के बाद वो लगा समझते ये हमारा आंखों का जादू को समझते, लेकिन ये लगा के सामने चल रहा आसमान से उतारता, फिर भी ये लगा मानते नहीं। अब अल्लाह क्या बोलता है उस किताब को, उस लिखी हुई चीज को, पेपर को, जैसे पेपर है पेपर को ऐसा टच कर को देख रहे तो वो जादू की मालूम हो जाता ना। टच करे तो हम महसूस किया कर लो जादू नहीं, अब ये नहीं है कर लो क्या भी मालूम होता नहीं ना, टच करे तो भी हमें छूने के बाद भी। अब वो बोलता है छूने के बाद भी ये लोग मानते नहीं, कहीं को मानते नहीं, माने इन सर का क्या कहते करता है। तो वो लगा इनकार करने वाले लोग क्या बोलते अल्लाह करते तो बोलते कहते वो लगा खुला हुआ जादू, ये अल्लाह की निशानी नहीं कहते कहते। उतने देखने के बाद उतारे तो भी अल्लाह क्या बोलते खुला हुआ जादू, ये खुला हुआ जादू को बोलते करता है। कहीं को अल्लाह करते तो वो लगा वो लगा असल मानना तो वो तो दिल में नहीं है, मानना तो है तो उसकी एक निशानी देख को मान जाते, लेकिन ये लगा मानते नहीं है वो बोलता है। अब अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है ये लोग कह रहे हैं कि इस नबी के ऊपर फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल होता। तो क्या वो लगा पूछते हैं फरिश्ता कहीं को नाजिल होता नहीं हमारे नबी के ऊपर को, ये लगा तो मालूम नहीं। अल्लाह छुपके सी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बोलता, जिब्राइल सलाम आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर इल्का करते, आयता उतारते दिल के ऊपर, वो हमारे नबी लोगों में बयान करवाते, ये को बोल के बयान करवाते। अब वैसा नहीं करते, लगा क्या माना करते आसमान से लगा हम क्या सामने फरिश्ता उतारना कहते, फरिश्ता उधर को इधर है फरिश्ता रहना कहते, इधर हमारे नबी रहना कहते, रखो फरिश्ता बार बार बोलना कहते ये अल्लाह के नबी है, अल्लाह के नबी है, अल्लाह के नबी को बोलते बोलना कहते। जब बोला था ईमान लाते कहते हैं, ये बारे में अल्लाह बोलता है अभी इस आयत में बोलता है अल्लाह ताला अगर हम फरिश्ता उतारना होता तो इनका काम तमाम चुका होता। कही तो क्या इनको मोहलत नहीं दी जा सकती। अब ये इससे पहले कौमा क्या तो फरमाइशी मुतालबे करे तो वो फरमाइशी मुतालबे अल्लाह पूरा करे कर लो, वो लगा पूरा करने के बाद ईमान नहीं लाया तो पूरा कौम को बर्बाद कर डालता। सो अल्लाह साले अलैहिस्सलाम है, साले अलैहिस्सलाम वाले के कौम वाले क्या बोले मालूम, ये पहाड़ का ले जाको ना कि नबी को साले अलैहिस्सलाम को ले जाको पहाड़ करे, ये पहाड़ में से ऊंट आया तो मैं मानता हूं ईमान लाते को बोले पहाड़ में से ऊंट आना कहते। अल्लाह क्या करा फरमाइश पूरी करता रहा, पहाड़ में से ऊंट को बाहर निकाला अल्लाह, निकालने के बाद लगा ईमान लाई नहीं, क्या करे अल्लाह सबको बर्बाद कर दे रहा, पूरी कौम को खत्म कर रहा है। अब उसका से अल्लाह फरमाइशी मुताबिक पूरी नहीं करता, अब या पूरी तरह कर लो लगा बोले ना फरिश्ते उतारा कर लो पूरी कौम खत्म हो जाती। इसके बाद नबी कोई भी नहीं, हमारे नबी आखिरी नबी। अभी बहुत जमाना चलना, बहुत जमा ईमान लाते सुनो है, इस्लाम पूरी करते सुनो है, ये सब भी निजाम नहीं चलता। अगर अल्लाह पूरी करा तो पूरी करने के बाद लगा ईमान लाते नहीं, अल्लाह को मालूम पूरी करम तो भी लगा ईमान लाते नहीं को बोल को, अब ईमान नहीं लाए तो इनके वजह से पूरा कौम को मैं तबाह कर डालना। लेकिन ये तो नबी आखिरी नबी, इनके बाद आने वाला नबी कौन नहीं, सारे अलैहिस्सलाम के कौम को खत्म कर डालने के बाद दूसरे नबी आते 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 रहे, कई के तो लगा आखिरी नबी नहीं होने थे, लेकिन यहाँ हमारे नबी आखिरी नबी। रोज बोलता है अगर मैं ये लगा बोले सो काम करम तो अब ये लगा तो कहीं देखो नहीं, मैं मोहलत नहीं देते, ये लगा को ये लगा सबको खत्म करो बाजी फेंका बोलते हैं अल्लाह ताला। अब अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम फरिश्ता उतारते तो भी इंसानी शक्ल में उतारते। अल्लाह बोलता है अगर हमें फरिश्ता उतारे तो भी इंसान शक्ल में उतारते जी, हमें खाली डायरेक्ट फरिश्ता को हमें कौन भी देख नहीं सकते, कहीं को देख सकते नहीं भाई कब कहीं, तो वो नूर से बनी हुई मखलूक है, नूर को हमें देख नहीं सकते, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हमारे आंखों के अंदर इतनी ताकत नहीं है हमें उसको डायरेक्ट देख सके, उसका से हमें देख सकते नहीं। ये अल्लाह क्या बोलता है तुम्हें देख सकते नहीं होने से हमें फरिश्ता भेजना है तो भी इंसान शक्ल में भेजते हैं, इंसान शक्ल में भेजते हैं। काफिर लोग क्या कहते हैं नहीं ये तो इंसान है को बोलते। अल्लाह कितना प्रूव करे तो भी अबे तुम्हें लगा खाते हैं, इंसान खाते पीते, फरिश्ते खाते नहीं पीते नहीं ना, वही सब प्रूव करे तो भी अल्लाह ताला साबित करे तो भी अल्लाह ताला ये लगा मानते नहीं, ये लगा कहीं को मानते नहीं करते तो कुफर। बिल्कुल क्या कहते आखिर में ये भी जादू को बोलते।
अब वो पता है अल्लाह मैं कहता बोले तो भी नहीं मानने वाला नहीं मानता। मानना कल्या सुने मेरी निशानियां देखो। अब नबी को देख लो, कुरान उतारा, कुरान कितनी बड़ी निशानी, वो देखो ईमान कहीं कुलाते नहीं है, ये लगा क्या ईमान लाए जाना, तो बोलता अल्लाह बोलता है ईमान लाए तो हो जाता ना, क्या ये लगा बोले से शुद्धि में करना क्या, कितने है तो दलीला है कि प्रूफ है कि हमारे नबी सच्चे को उतने शुद्धि कायम कर रहा हो। चांद के 2 टुकड़े कैसे हुए, हमारे नबी को बोलते बोला तुम्हें चांद को 2 टुकड़े करे तो हमें ईमान लाते को बोल को, ऐसा इशारा करते हमारे नबी, चांद को 2 टुकड़े अल्लाह कर रहा का फिर ईमान लग कहीं नहीं, कितने बताए तो भी लगा ईमान नहीं लाते। ईमान लाता सुने ये एक निशानी भी अल्लाह की देखो ईमान ला सकता, लेकिन नहीं लाना कल्ला सुने कितनी निशानियां देखो भी ईमान नहीं लाता। वो बोलता है हमें फरिश्ता उतारे तो भी इंसानी शक्ल में उतारते, जब भी ये लगा वो बोलते ये तो जादू को बोलते। अब आखिरी आयत में 10वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले पैगंबरों के साथ भी रसूलों के साथ भी यही मामला हुआ, ऐसे ही मजाक उड़ाया गया, लेकिन आखिरकार वही मजाक इनको घेर लिया है। ये यही मजाक कहते तो लगा क्या मजाक उड़ाते सो, अल्लाह क्या तो डर के आया तब बोल को सुनाता है, तो हमारे नबी बोलते हैं तो डराते हैं तो मजाक उड़ाते सो, उनके बाद जिंदा होना कहते दोबारा, हाँ हमें मर जाते मिट्टी हो जाते सब भी खत्म हो जाता, हमारे जिस्म भी रहता नहीं, हड्डियां भी रहती नहीं, आकर फिर अल्लाह जिंदा करता कहते, तो बोल को मजाक उड़ाते सो। ये शुद्धि आयता की मजाक उड़ाते हैं ना, ये लगा पिछले कौम में तुमना एक जना कुछ नहीं, कितने नबी आए कि हर एक नबी को भी वो लगा ये बोलते सो मजाक उड़ाते सो, लेकिन आखिरकार लास्ट में क्या हुआ सकते तो किस चीज का है तो वो लगा मजाक उड़ाते हैं कि वो मजाक ही तुमको घेर वाला है, घेर डाल तो वो अजाब इनका आ गया। वो बता है अल्लाह आखिरी आयत में अब ये बताता है कि तुम्हारी कौम को भी तुम्हारी उम्मत को भी चाहिए मुझसे डरे, मेरे अजाब से डरे और मुझ पर ईमान लाए। अब ये पूरा 7वें पारे का 7वें रुकू सूरह अनाम का एक रुकू पूरी रुकू। अब इन पूरी निशानियों में से अल्लाह ये बताना चाहता है कि खुल्लम खुल्ला शिर्क मत करो अल्लाह के साथ है, मेरे इतनी निशानियां है मैं बयान करता हूँ, इतनी निशानियां देखो मेरे ऊपर ईमान लाओ, तुम्हें दूसरे किसी को भी मानना न को, मैं क्या बोलो तो वो करो, दूसरे को करना न को। अब मानने वाला एक निशान को देखो है तो भी मानता, नहीं मानने वाला असल मानता नहीं को बोलता है। अब ये हम ना अब इनके सुनने के बाद ये सब भी हमें सोच लेना हमें भी इसमें छे, हमें मानते नहीं है अल्लाह को, हमें भी इसमें छे। अब ये हमें सोच लेना हमें किधर होना है, मजाक उड़ा के उसको तरफ होना हमें, नहीं तो अल्लाह को मानने वाले की तरफ होना भाई, बोलो अल्लाह को मानने वाले की तरफ होना ना, हमें मजाक नहीं उड़ाना, मजाक उड़ाए तो हमना भी बहुत मजाक हमना घेर लेता आंखों, हमें किसका है तो किस चीज का है तो मजाक उड़ाते हैं कि उसका हमें भी मजाक उड़ाई जाए। अल्लाह बोले से उसके हुक्मों को पूरे कर को आप 5 वक्त की नमाज आप पाबंदी के साथ नमाज पढ़ लेना, उसकी मजाक नहीं उड़ाना, उसकी एक आयत का इनकार करे तो भी अल्लाह जालिम बोलता है, मुजरिम बोलता है, उसे मामूल से अजाब दे तो नहीं बोलता है, एक आयत का झुटलाया तो भी। आज ये मामूल हो गया, मरने के बाद दोबारा जिंदा होते रहेगा तो एक जना भी मानता नहीं, हंसता मजाका उड़ाता, दोबारा जिंदा होते भाई कहते क्या ये अल्लाह जो बोलता है दोबारा जिंदा करता हूँ, कहीं को मानना नहीं, मजाका उड़ाते हैं हमें। आज हमें को ये मजाक उड़ाए तो सबा ये मजाक ही हम अजाब बनकर हमारे सामने आ जाता, उसका से हम ऐसा क्या भी करे जानी भाई, हमें अब से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्मों पर चलेंगे ना भाई, ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं करना, हमें नहीं करेंगे ना भाई। अल्लाह ताला कहने से सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, जिसकी सुन्नत बात